Hello students, so today I am going to start the second chapter of CBSE class 9th maths, and the name of the chapter is polynomials. Polynomials. The first question is, which is called polynomials? The first question is, which is called polynomials? An expression which can be written in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus up to an xn are called polynomial where a0, a1, a2 up to an are real numbers and a0, a1x, a2x square up to an xn are the terms of polynomial मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें ए वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्या हैं, ऑल ऑफ द रियल नंबर्स, एंड द जो भी प्लस साइन से हमारा सेपरेट किया हुआ है सारे सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल a0 इज अ टर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, a1x इज टर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, a2x स्क्वायर इज आल्सो ए टर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट है कि हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, and the second type is on the basis of degree. On the basis of degree there are three types of polynomial you have to study in class 9. The first one is monomial, the second is binomial, and the third one is trinomial. And on the basis of degree there are 5 types of polynomial you have to study in class 10th. The first one is constant polynomial, the second one is linear polynomial, the third one is quadratic polynomial, fourth one is cubic polynomial, and the last one is biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. So let us see one by one the definition of the corresponding polynomials. Which is called monomial? An expression in which a single term मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक सिंगल टर्म हो आर कॉल्ड मोनोमियल. बाइनोमियल मीन्स यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं मोनोमियल मीन्स अ सिंगल टर्म,
single term, binomial means 2 term, trinomial means 3 term, means a polynomial having a single term. A polynomial having a single term is called monomial. A polynomial having 2 terms in their expression are called binomial, and the trinomial is a polynomial having 3 terms in their expression are called trinomial. मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक सिंगल टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म हो उसे बाइनोमियल बोलते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। सबसे फर्स्ट में कि ये टर्म सेपरेट किससे होता है, क्या ये इनटू साइन से यानी मल्टीप्लाई साइन से सेपरेट होता है, डिवाइड साइन से सेपरेट होता है, प्लस साइन से सेपरेट होता है या माइनस साइन से सेपरेट होता है। तो यहाँ पर इसके जनरल फॉर्म पे देख लें कि यहाँ जो टर्म को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे सिंगल सिंगल जो टर्म नोट किया गया है वो पहला चीज़ कि प्लस साइन से इसको सेपरेट किया गया है, सेकंड में इसको माइनस साइन से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक, यानी कि टर्म कैन बी सेपरेटेड बाय द साइन प्लस एंड माइनस, मीन्स टर्म को केवल प्लस और माइनस साइन से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई कैन राइट x here, number first, number second x plus 1, number third x square plus 2 plus 3x, and some other example is x plus y. Identify the which type of this polynomial on the basis of term. हमें आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, और वो आइडेंटिफाई हमें किस बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दिस इज मोनोमियल, दिस इज बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म, फर्स्ट टर्म इज x and second term be 1. The third one is trinomial having 3 term, x square is first term, 2 is second term and 3x is your third term. And the fourth number is x plus y. X plus y is a binomial, means x plus y having 2 term, x is your first term and the y is your second term. So the next classification is on the basis of degree. On the basis of degree there are 5 types of polynomial: constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial. Constant polynomial, an expression having 0 degree of the variable, an expression having 0 degree of the variable is called constant polynomial. डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, डिग्री 0 होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर नोट कर देते हैं, फर्स्ट वाले का डिग्री 0। linear polynomial, an expression having 1 degree of variable is called linear polynomial. linear polynomial में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1. नंबर थर्ड quadratic polynomial, an expression having 2 degree of the variable are called quadratic polynomial. इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 2. नंबर 4 cubic polynomial, an expression having 3 degree of the variable are called cubic polynomial. Again degree इसमें 3. And the fifth number is biquadratic polynomial, an expression having 4 degree of the variable called biquadratic polynomial. मीन्स टर्म वाले में हम टर्म काउंट करते थे, अगर सिंगल टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। डिग्री वाले में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाले में हमें चेक करना है वेरिएबल की डिग्री। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल में
उससे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। क्यूबिक में उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 4 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सबसे फर्स्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल 5 कैन बी रिटन एज 5x to the power 0 एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ x to the power 0 इज इक्वल टू 1। भाई किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 5x to the power 0। अब यहाँ पे वेरिएबल x जो है एज ए वेरिएबल रोल कर रहा है। अब यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 0। तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हम यहाँ पे नोट किए थे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एकदम सिंपल सा एग्जांपल है रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर होगा वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल -2, -10, -5/2, ये हमारे सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है मीन्स x to the power 0, और x to the power 0 हाईएस्ट डिग्री 0 हुई, तो हाईएस्ट डिग्री 0 की वजह से ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नंबर 2 में हाईएस्ट डिग्री, अब हमें चेक करके बताना है कि कौन सा वो पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सम एग्जांपल्स आई कैन राइट हियर, लाइक x + 2, 3 + 2x - x², y to the power 4 + 3x - 3y - xy। And another example is 1 - 2x³, 2 - 7x² - 4x³ -10 z + z to the power 4 - z³ + z²। Identify which type of this polynomial on the basis of degree। हमें चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल हैं। द फर्स्ट में हमें चेक करना है x + 2, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 मीन्स डायरेक्टली हम यहाँ क्या नोट करेंगे, लीनियर। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है, 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 मीन्स हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट नंबर इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, द हाईएस्ट डिग्री इज 4, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन में, इन दिस एक्सप्रेशन द हाईएस्ट डिग्री इज 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन दिस एक्सप्रेशन द हाईएस्ट डिग्री इज 4, दैट इज 4 मीन्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इस टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देखें। पॉलिनोमियल में टर्म्स सेपरेट किस साइन से होते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन को देखें। क्लासिफिकेशन 2 टाइप से है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, name monomial, binomial, trinomial, and on the basis of degree there are 5 types of polynomial, name constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. So see the exercise 2.1. exercise 2.1
The exercise 2.1 question number first says that which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer. मीन्स कौन सा पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल में, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, हमको रीजन देना है। तो नंबर फर्स्ट में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल का जो भी डिग्री है वो ना तो निगेटिव होना चाहिए, वेरिएबल का डिग्री ना तो निगेटिव होना चाहिए, नाइदर निगेटिव नॉर फ्रैक्शन। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पॉलिनोमियल में डिग्री बोलें, एक्सपोनेंट बोलें, डिग्री और एक्सपोनेंट नाइदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, मीन्स डिग्री शुड बी ए होल नंबर। डिग्री तो होना क्या चाहिए, डिग्री शुड बी अ होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लें, फर्स्ट में वन वेरिएबल में है, सेकंड जो डिग्री है हमारा वो एक होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। नंबर सेकंड में वाई स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लें कि वन वेरिएबल में है और डिग्री भी एक होल नंबर में है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। वो भी कितने वेरिएबल में है, ये दोनों नंबर जो है हमारा एक सिंगल वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल में। नंबर थर्ड 3√t प्लस t√2, वन वेरिएबल तो है, तो क्या ये भी चेक कर लें कि जो भी वेरिएबल दिया है उसका उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर वन डिग्री होल नंबर में है या नहीं है। तो 3√t प्लस t/√2 कैन बी रिटन एज 3t⁻1/2 प्लस t√2। अब यहाँ पर देख लें, ये हमारा जो 1/2 है, जो t का डिग्री है, ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नंबर 4 y प्लस 1/2 y प्लस 2/y, y प्लस 2/y कैन बी रिटन एज y प्लस 2y⁻⁻1। ये डिनोमिनेटर से y जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो अपने डिग्री को, अपने एक्सपोनेंट का वो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। अब यहाँ पर ये भी चेक कर लें कि क्या ये तो पहला चीज़ की वन वेरिएबल में है, ठीक। द सेकंड क्वेश्चन है कि क्या इसका डिग्री एक होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर के साथ यहाँ देख लें कि ये एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो निगेटिव नंबर के लिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। नंबर फिफ्थ नंबर इज द नंबर फर्स्ट, द नंबर सेकंड, दिस नंबर इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड द फिफ्थ नंबर इज x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। हमें बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो भी वन वेरिएबल में। ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इस वजह से है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड बोला है कि इन वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल दिए हुए हैं, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। लेकिन कितने डिग्री में है, कितने वेरिएबल में है, इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। कोफिशिएंट मीन्स
वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल पर देखें कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 7 इज कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर दिया हुआ है, पर्टिकुलर में हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है 2 + x² + x हमें फाइंड करना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इसके आगे नंबर कितना है 1 है। नंबर 2 में देख लें 2 - x² plus x³ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1 है, यहाँ +1 था, +1 आई यहाँ पे नोट किया गया है। नंबर थर्ड में π/2 x², द थर्ड नंबर इज π/2 x² plus x, the coefficient of x² is π/2, and the number 4 √2x -1, √2x -1, the coefficient of x² is x² वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0, अगर x² वाला टर्म्स दिया ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। और इसी पर अगर चेक करें कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे चारों क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट देखें, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ x इज x का कोई टर्म ही नहीं दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, द कोफिशिएंट ऑफ x इज अगेन 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज √2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री। हमें एक एग्जांपल देना है जिसमें जो एक बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल किस टाइप का है, बाइनोमियल है, लेकिन डिग्री कितनी है उसकी 35। तो एग्जांपल कुछ भी दे दें। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ये हो गया x टू दी पावर 35 - 10, कुछ भी नोट कर लें, बस बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। तो बाइनोमियल मीन्स 1 टर्म एंड 2 टर्म बाइनोमियल एंड द डिग्री इज 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री। अब हमें मोनोमियल लिखना है, ठीक है, मोनोमियल, लेकिन 100 डिग्री के लिए मोनोमियल मीन्स है सिंगल टर्म। तो यहाँ पे कुछ भी नोट कर लें, y टू दी पावर 100, ठीक, y टू दी पावर 100 ये एक सिंगल टर्म है और इसका डिग्री कितना है 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री नोट करना है। नंबर 4 में फर्स्ट नंबर जो है 5x³ + 4x² + 7x, डिग्री कितना है 3, जो हाईएस्ट डिग्री है उसे नोट करेंगे। नंबर 2 में 4 - y², डिग्री कितना है इसका 2। थर्ड नंबर में 5t - √2, डिग्री कितना है इसमें 1। और नंबर 4 केवल 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। हम जो भी डिग्री चेक करते हैं हम वेरिएबल की डिग्री को चेक करते हैं, और इस वाले 4 वाले क्वेश्चन में इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, मीन्स डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0। नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री of the variable, quadratic a polynomial having 2 degree of the variable, and cubic a polynomial having 3 degree of the variable. तो फर्स्ट में x² + x, the highest degree is 2, this is quadratic. Number 2 x - x³, the highest degree is 3, that is cubic. Number third y + y² + 4, the highest degree of this expression is 2, that is quadratic. Number 4 1 + x, the highest degree of this variable of this expression is 1, this is linear polynomial. Number 5th 3t, the highest degree of this polynomial is 1, that is linear polynomial. Number 6 r², the highest degree of variable is 2, that is quadratic. Number 7 7x³, the highest degree of this expression is 3, 3 means cubic polynomial.